السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی صحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قیامت کی نشانیاں آپ کے سامنے ہر اتوار کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چھوٹی نشانیوں پر تقریباً 23 درس ہو چکے ہیں، آج 24واں درس ہے۔ آج کے درس میں بھی ہم کچھ نشانیاں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قراء کی کثرت ہو جائے گی اور علماء اور فقہا کی قلت ہوگی۔ پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، نصوص انہیں یاد بھی ہوگا، آیتیں بھی یاد ہوں گی، احادیث بھی یاد ہوں گی، لیکن ان کے پاس سوجھ بوجھ کی، علم کی کمی ہوگی، حکمت کی کمی ہوگی، شعور اور آگہی کی کمی ہوگی، نصوص کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ جیسے خوارج ہیں، جو خوارج ہیں ان کے پاس ہے، آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، لیکن ان آیتوں اور حدیثوں کا معنی وہ نہیں سمجھتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، جو سلف صالحین کی مراد ہے، بلکہ وہ اپنے فہم کے مطابق ان آیتوں اور حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں۔ ایسے جو اہل بدعت ہیں، اہل خرافات ہیں، ان کے پاس بھی ہے آیات اور حدیثیں، لیکن ان آیت اور حدیثوں کا غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ قراء ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، فقہ نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، اور حدیث کا معنی اور مطلب کیا ہے اس کا معنی اور مطلب وہ لوگ نہیں سمجھتے۔ تو قراء کی خوب کثرت ہوگی، لیکن علماء اور فقہا کی جو ہے قلت ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ایسا زمانہ آئے گا کہ قراء کی کثرت ہوگی اور فقہا کی قلت ہو جائے گی۔ قراء یعنی پڑھنے والے، بہت سارے پڑھنے والے آپ کو نظر آتے ہیں۔ قراء وہ بھی ہیں جو کچھ کتابیں پڑھ لیں، کچھ لوگوں کا درس سن لیا اور کچھ دورات میں شریک ہو گئے اور اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھنے لگے، دعوت کا اسٹیج سجا لیا، فتوے دینے لگے اور لوگوں کے درمیان تقریریں اور دروس کرنے لگے۔ یہ بھی قراء ہی ہیں جن کے پاس سوجھ بوجھ کی کمی ہے۔ وہ صحیح طریقے سے قرآن کی آیتوں کو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، صحیح طریقے سے کوئی حدیث نہیں پڑھ سکتے، نہ اس کا معنی اور مطلب بیان کر سکتے ہیں، لیکن دعوت کے میدان میں خوب پذیرائی ان کی ہو رہی ہے، کیونکہ جہلا کی کثرت ہے اور ان پڑھ لوگوں کی کثرت ہے، لہذا زیادہ ان کی قبولیت ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی قراء ہی کے اسی زمرے میں کے اندر داخل ہیں، جن کے پاس کچھ آیات اور حدیثیں تو ہوں گی، لیکن صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں پائیں گے اور نہ ہی اس کا صحیح معنی اور مطلب وہ جانیں گے، بلکہ وہ اپنی طرف سے اس کا معنی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علماء کو موت دے کر کے۔ اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء کی وفات ہو رہی ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، خاص طور سے کرونا کے اس دور میں کتنے علماء بڑے بڑے دنیا سے چلے گئے۔ تو اس طریقے سے علماء کی وفات پا جانا یہ علم کا اٹھایا جانا ہے، کیونکہ جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے سینے کا جو علم ہے وہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے علماء ہیں جن کے پاس اللہ رب العالمین نے بہت علم دے رکھا ہے، لیکن ان کی کوئی تصنیف نہیں ہے، کوئی تالیف نہیں ہے، وہ صرف اور صرف تدریس کے میدان میں ہیں، لیکن پوری امت ان سے استفادہ کر رہی ہے۔ ظاہر بات ہے ایسے علماء کی جب وفات ہو جائے گی تو گویا کہ ان کا علم ان کے ساتھ چلا جائے گا، یا اگر تالیف بھی ان کی ہے، کتابیں بھی ہیں، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد ان کی کتابوں سے استفادہ کم ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں لوگ زیادہ استفادہ کرتے ہیں، لیکن وفات کے بعد وہ استفادہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کا علم اڑ جاتا ہے، اور علم ان کی وفات سے ہوتی ہے۔ علم کیسے ختم ہوتا ہے؟ علماء کی وفات سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حرج خوب ہوگا۔ لوگوں نے کہا حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپس میں قتل و غارت گری۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن اس کا معنی نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کریں گے، جیسے خوارج ہیں، روافض ہیں، اہل بدعت، اہل خرافات ہیں۔ اور بھی لوگوں کے اندر کچھ لوگوں کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل نہ کرنا، تو علم لوگوں کے لیے وبال جان ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی اس کا معنی اور مطلب نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اور یہ آپ نے نشانی خوارج کے بارے میں بتائی ہے۔
खवारिज के बारे में कुरान पढ़ेंगे और खूब कुरान पढ़ते हैं, वो कुरान का बड़ा एहतमाम है, क्योंकि वो हदीसों का उनके यहाँ एहतमाम नहीं होता, और वो हदीसें जो उनके फ़हम के मुताबिक कुरान के ख़िलाफ़ हैं, उन हदीसों का इनकार भी कर देते हैं। और हदीस आहद एक नई इस्तिलाह जो लोगों ने बाद में कायम की, उसको भी नहीं मानते हैं लोग। तो इस तरीके से हदीसों का इनकार कर देते हैं। तो ये है कि कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। तो ये जो निशानियां हैं ये तकरीबन इस दौर में पूरी हो चुकी हैं। वो ये कि कुर्रा की कसरत और उलमा और फ़ुक़हा की क़िल्लत, ये निशानी इस दौर में पूरी हो चुकी है। इस तरीके से एक और निशानी है कि जो छोटे हैं इल्म में और कम इल्म हैं और बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, उनको छोड़ करके छोटे और जाहिलों से लोग इल्म हासिल करेंगे। छोटे और जाहिलों से लोग इल्म हासिल करेंगे, ये भी एक क़यामत की निशानी है जो आज के इस दौर में बतौर ख़ास पूरी हो रही है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े उलमा को लोग दरकिनार कर रहे हैं, लोग उनसे इस्तिफ़ादा नहीं करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास गहराई नहीं, इल्म नहीं और फ़िक़्ह नहीं, सूझबूझ नहीं, सही तरीके से न कुरान की आयत पढ़ सकते, न हदीस का तर्जुमा कर सकते, ऐसे लोगों के पास आप लोग देखेंगे जमघटा नज़र आएगा। ऐसे लोगों के पीछे लोग भागेंगे और लोग ज़बरदस्ती उनको प्रोग्रामों में बुलवाएंगे, कैसे लोगों को बुलाया जाए। लेकिन जो बड़े बड़े उलमा हैं, अब आप बड़े अफसोस की बात है ये कि जब बड़े उलमा का कभी दर्स होता है तो लोग उनके दर्स की मुखालफत करते हैं और कहते हैं फ़ला आलिम को लेकर के आए जो गाता है, मौजू रवायतें, ज़ईफ़ रवायतें बयान करता है और चटखारे लेकर के बयान करता है। न उनके अक़ीदे की इस्लाह होती है, न उनके अंदर किसी अमल का इजाफ़ा होता है और ना ही इल्म का इजाफ़ा होता है। और लोग मज़े लेने के लिए सुनते हैं, गा गा करके लोग दर्स देते हैं और उसमें झूठे वाक़यात, झूठी कहानियाँ लोग बयान करते हैं और ऐसे लोगों को लोग ज़्यादा सुनते हैं। और जो बड़े बड़े उलमा हैं, मुहक़्क़ीन हैं, कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले हैं, ऐसे लोगों से लोग इल्म हासिल नहीं करते। या जब उनका अगर किसी प्रोग्राम में दर्स भी होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं या उनके दर्स और तकरीरों को सुनते हैं। बाकायदा फरमाइशें करते हैं कि फ़ला आलिम को लाया जाए, जैसे कि मुशायरे के अंदर होता है नाउज़ बिल्लाह, जब कोई शायर आकर के शेर सुनाता है और आवाम को उसका शेर पसंद नहीं आता तो बाकायदा वो हड़बड़ाहट करते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं कि इसको भगाओ, इसको ले जाओ स्टेज से। और बेचारा जो नाज़िम मुशायरा होता है मजबूरन उसे हटाना पड़ता है और किसी दूसरे शायर को लाना पड़ता है, क्योंकि लोग पैसे से टिकट खरीदे होते हैं, लोगों की मंशा के मुताबिक करना पड़ता है, मुशायरे को कामयाब करना पड़ता है। तो इसलिए जो मुशायरे की रस्म थी, गलत रस्म थी, वो रस्म गलत आज दीनी प्रोग्रामों के अंदर पहुंच चुकी है कि बाकायदा फरमाइशें करते हैं कि फ़ला आलिम को लेकर के आओ। और अगर कोई आलिम जो हकीकत में आलिम है, अगर वो दर्स देता है, तकरीर करता है, लोग उसका बायकाट करते हैं या ये कि शोर मचाते हैं, चीखते हैं और इस तरीके से उनको स्टेज से भगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हकीकत में आलिम वही होता है। आलिम वो है जिसे उलमा आलिम कहें, आलिम वो नहीं है जिसे जाहिल आलिम कहें। इल्म एक मैदान है, लिहाजा इस मैदान के जो शहसवार हैं, मैदान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, वही जिसके बारे में गवाही देंगे वही आलिम होगा। आलिम वो नहीं है जिसे जोहला पसंद करें, जिसे जोहला आलिम कहें, वो आलिम नहीं हो सकता। जैसे डॉक्टर वो होता है जिसे डॉक्टर कहे कि डॉक्टर है। एक आम आदमी किसी को डॉक्टर कहे वो डॉक्टर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कितने झोला छाप डॉक्टर हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई डिग्री नहीं और इस तरीके से लोगों के इलाज करते हैं। अवाम उन्हें डॉक्टर कहती है, डॉक्टर अवाम उन्हें कहती है, हालांकि हकीकत में वो डॉक्टर की नज़र में डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर वो है जिसे डॉक्टर डॉक्टर कहें। ऐसे उलमा वो हैं जिन्हें उलमा आलिम कहें, वो आलिम होते हैं। उनसे इल्म हासिल करना चाहिए, छोटों से, अहले बिदअत से, अहले कुफ्र, अहले ज़ैग़ो ज़लाल से, इन लोगों से इल्म हासिल करना ये भी क़यामत की निशानियों में से एक छोटी निशानी है जो इससे पहले भी पूरी हुई और आज के दौर में बतौर ख़ास ये पूरी हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके बाद सहाबा ताबईन सलफ़ सालिहीन का जो दौर है, उस दौर के अंदर आप देखेंगे कि लोग बड़े बड़े उलमा और फ़ुक़हा से इल्म हासिल किया करते थे। अबू उमैया अल-जुहमी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि ये क़यामत की निशानियों में से कि लोग असागिर से इल्म हासिल करेंगे। ये तबरानी की रवायत इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सहीहुल जामे के अंदर इसको बयान किया है। असागिर क्या है? असागिर के अंदर दो किस्म के लोग शामिल हैं या बहुत सारे किस्म के लोग।
इमाम मुहद्दिस अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया असागिर से कौन मुराद हैं, तो फरमाया जो अपनी राय से कहते हैं, यानी कुरान और हदीस की मनमानी तावील करना, अपनी फहम और अक्ल के मुताबिक उसका माना बयान करना। जो मुतज़िला हैं, इन मुनकरीन हदीस हैं, या खवारिज और रवाफिज हैं जो अपनी फहम और सूझ के मुताबिक कुरान और हदीस की तावील करते हैं, माना बयान करते हैं, वो असागिर लोग हैं, चाहे वो कितने बड़े क्यों ना हो अपनी जमात में। लेकिन हकीकत यह है कि किताब और सुन्नत के सामने वो छोटे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कुरान और हदीस है, दीन सबसे बड़ा। और दीन को जो सलफ़ सालिहीन के फहम के मुताबिक समझेगा और अकीदा रखेगा, वही इंसान बड़ा होता है, चाहे वो उसके पास इल्म भी ना हो, चाहे उम्र में कम हो या किसी और चीज़ में कम हो, लेकिन हकीकत में वही कबीर इंसान है, वही समझदार है, वही हकीम है जो किताब और सुन्नत को सलफ़ सालिहीन के फहम के मुताबिक समझता है। तो जो अपनी राय से दीन की तावील करे, कुरान और हदीस का माना बयान करें, वो क्या है? अहलुर राय, वो भी असागिर हैं। और ये भी कौल है कि असागिर से मुराद अहले बिदात हैं, अहले बिदात, अहले खुराफात, अहले शिरक, और वो भी उसी के अंदर दाखिल है। क्योंकि जब इंसान किताब और सुन्नत को छोड़ता है और सलफ़ सालिहीन की तक़ीद से बाहर हो जाता है और अब मनमानी तावील करता है, तो लोगों के अंदर बिदअतें आती हैं, लोगों के अंदर गुमराहियाँ आती हैं। तो ये भी किताब और सुन्नत के छोड़ने का नतीजा है, या किताब और सुन्नत को सलफ़ सालिहीन के फ़हम के मुताबिक ना समझने के आसार हैं। और ये नताइज हैं कि इंसान बिदात के अंदर चला जाता है जब इंसान किताब और सुन्नत को सलफ़ सालिहीन के फ़हम के मुताबिक उसका माना बयान नहीं करता। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि लोग उस वक्त खैर भलाई में रहेंगे जब तक वह इल्म असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने अकाबिर से सीखते रहेंगे। लेकिन जब वह इल्म असागिर से सीखना शुरू कर देंगे और उनकी नफसानी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी, तो लोग हिलाक हो जाएंगे। बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, उनसे इल्म ना हासिल करना और छोटे लोगों के पास जाकर के इल्म हासिल करना, ये सब बर्बादी है, हिलाकत है और क़यामत की निशानियों में से है। मुझे हैरानगी होती है कि इंसान जब दुनिया का इल्म हासिल करता है तो उस फन के माहिर को तलाश करता है। अच्छा उस्ताद चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। अगर कोई ट्यूटर रखना चाहता है तो अच्छा ट्यूटर चाहिए, अच्छे असातिज़ा चाहिए, मेआरी स्कूल चाहिए हमको जहाँ पर बेहतरीन और अच्छे असातिज़ा हों, पढ़े लिखे हों, लायक और फायक असातिज़ा टीचर हों, वहाँ तो ढूंढता है वो। लेकिन दीन के मामले में इंसान इस चीज़ का ख्याल नहीं रखता। जिसकी चरब ज़ुबानी उसे पसंद आ जाए, जिसका दर्स से तरीक़े दर्स उसे पसंद आ जाए और जिसकी बातें उसे पसंद आ जाएं, जिसके दर्स में उसे मज़ा आने लगे, उसको लोग पसंद करते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे इल्म हासिल करते हैं। हालांकि उनके पास इल्म नहीं होता, इस लायक ही नहीं होते वो कि वो दीन को वो फतवा दे सके या दर्स व तदरीस के फरीज़े को अंजाम दे सके, नहीं होते, उनके पास सलाहियत नहीं होती। लेकिन लोग उन्हीं के पास जाते हैं। तो लोगों का मेयार बदल गया है। दुनियावी चीज़ों में तो वो ढूंढते हैं कि क्वालिटी चाहिए हमको और बेहतरीन असातिज़ा चाहिए, बेहतरीन कॉलेज चाहिए। लेकिन दीन के मामले में जिसको भी देखा कि कुछ थोड़ा बहुत उसके पास इल्म हो गया और बोलने का तरीका आ गया, अंदाज़ बयान थोड़ा अच्छा है और लोग उससे मरऊब होने लगे, तो लोग उसी को अपना रहबर और अपना आलिम और अपना मुफ्ती समझ लेते हैं और उसी से लोग फतवा हासिल करते हैं। तो ये सब क़यामत की निशानियों में से है जो आज के दौर से में बतौर ख़ास पूरी हो चुकी है। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने दीन का इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने और उसकी तरफ लोगों को हिकमत के साथ, बसीरत के साथ बुलाने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हमें सूझबूझ दे, अल्लाह हमें हिकमत दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शऊर और इल्म आगाही अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बिदात व खुराफात से और दीन की मनमानी तावील और उसका माना बयान करने से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज पर कायम रखे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।